নমস্কাৰ। সো আজি ক্লাস 11 মাইক্ৰো ইকোনমিক্সৰ আমি নতুন চেপ্টাৰ ক'ব পাৰা আমি ডিমান্ড এনালাইসিসৰ সেকেন্ড পাৰ্ট ওকে আৰম্ভ কৰিব গৈ আছো। দিস ইজ নাথিং বাট চাহিদাৰ স্থিতি স্থাপকতা ওকে ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমান্ড ওকে। সো বিফোর ইউ স্টার্ট দ্য কনসেপ্ট ওকে প্রথম তুমি জানিব লাগিব ল অফ ডিমান্ড বা চাহিদাৰ বিধিত কি কোৱা হৈছে ওকে। অলৰেডি আমি জানো চাহিদাৰ বিধিত কোৱা হৈছে কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট দ্ৰব্যৰ দৰ যেতিয়া বৃদ্ধি পায় তেতিয়া সেই নিৰ্দিষ্ট দ্ৰব্যটোৰ চাহিদা হ্ৰাস পায় আৰু দৰ যদি হ্ৰাস পায় চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এট দ্য সেম টাইম কোৱা হৈছিল আন অৱস্থা অপৰিৱৰ্তিত ৰাখি। ক্লিয়াৰ মতলব according to the law of demand when price of one commodity increases then definitely demand decreases and vice versa. At the same time other things remains constant. তো প্রশ্নটো হৈছে চাহিদাৰ বিধিত দৰ বাঢ়িলে চাহিদা হ্ৰাস পায়, দৰ কমিলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়, সেইটো আমি ল অফ ডিমান্ডত জানো। কিন্তু ল অফ ডিমান্ডত এই কথাটো কোৱা হোৱা নাই দৰ কিমান বাঢ়িলে চাহিদা কিমান হ্ৰাস পাব বা দৰ কিমান হ্ৰাস পালে চাহিদা কিমান বৃদ্ধি পাব এই কথাটো ল অফ ডিমান্ডত কোৱা হোৱা নাছিলে। ক্লিয়াৰ? সেইকাৰণে চোৱা মই ইয়াতে ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমান্ড কনচেপ্টটো লিখিছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত আমি বেছিক পইণ্ট কেইটামান ডিছকাশ্যন কৰিব যাম ওকে। তেতিয়াহ'লে ব'লা আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যে ল অফ ডিমান্ডত আমি প্ৰাইচ আৰু ডিমান্ডৰ ৰিলেশ্যনটো ইনভাৰ্স বুলি জানো, কিন্তু প্ৰাইচ আৰু ডিমান্ডৰ লগত কিমান ইনভাৰ্স ৰিলেশ্যন সেই বস্তুটো ল অফ ডিমান্ডে কোৱা নাছিলে। ক্লিয়াৰ? সেইকাৰণে চোৱা মই লিখি থৈছোঁ ল অফ ডিমান্ডত ডাজ নট ইণ্ডিকেট মিনছ ল অফ ডিমান্ডে কেতিয়াও ইণ্ডিকেট কৰা নাই হাউ মাছ চেঞ্জ, ডেট মিনছ চাহিদাৰ কিমান পৰিৱৰ্তন হ'ব সেই বস্তুটো ইনক্লুড কৰা নাছিলে কোনে ল অফ ডিমান্ডে। মিনছ ল অফ ডিমান্ডত ডিমান্ডৰ চেঞ্জ হ'ব চাহিদাৰ চেঞ্জ হ'ব বাট কিমান চেঞ্জ হ'ব সেই কথাটো কোৱা হোৱা নাছিলে। ক্লিয়াৰ হ'ব? আৰু সেই যে ডিমান্ডৰ কিমান চেঞ্জ হ'ব সেই বস্তুটোক লৈ পেলাই কনচেপ্ট এটা ইলাষ্টিচিটি কনচেপ্টটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে অৰ ডেভেলপ কৰিছিলে কোনে আলফ্ৰেড মাৰ্শ্বেলে তেওঁৰ কিতাপত প্ৰিন্সিপলছ অফ ইকনমিক্সত। মিনছ প্ৰিন্সিপলছ অফ ইকনমিক্স নামৰ কিতাপখনত আলফ্ৰেড মাৰ্শ্বেলে ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমান্ড কনচেপ্টটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে। তাতে তেওঁ হাউ মাছ চেঞ্জ ইন ডিমান্ড কনসেপ্ট एक्सप्लेन কৰিছিলে अंडर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जितु लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करा हुआ नासिले। क्लियर? मैं बोलना चाहता हूँ लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस एंड डिमांड के साथ रिलेशन इनवर्स, लेकिन प्राइस और डिमांड के जो रिलेशन है ना उसमें प्राइस कितना चेंज होगा डिमांड का कितना चेंज होगा। मान लो प्राइस का चेंज इतना हुआ तो डिमांड का चेंज भी होगा, तो हाउ मच चेंज इन डिमांड ये चीज़ लॉ ऑफ डिमांड में डिस्कस नहीं किया था। क्लियर? इसलिए शायद अल्फ्रेड मार्शल ने वो जो हाउ मच चेंज इन डिमांड ये वाला टॉपिक इंक्लूड किया अंडर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? वो बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में डिस्कशन किया गया अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। क्लियर? तो टुडे आवर बेसिक कॉन्सेप्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेयर वी ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मच चेंज इन डिमांड एगेंस्ट प्राइसेस। क्लियर? তেতিয়াহ'লে হোৱাট ইজ ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমান্ড। ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমান্ড বুলি ক'লে আমি এইটো জানো ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমান্ড ৰেফাৰ্ছ টু দ্য proportionate or percentage change in demand for any good due to percentage or proportionate change in factors which affecting demand. That means demand को जो फैक्टर अफेक्ट करेगा वो फैक्टर के हिसाब से डिमांड का कितना चेंज होगा। वो फैक्टर प्राइस ऑफ दैट कंसर्न गुड्स भी हो सकता है, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स भी हो सकता है, वो फैक्टर कंज्यूमर का इनकम भी हो सकता है। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ डिमांड का जो चेंज होगा उसमें मान लो ये चौक का डिमांड, ये चौक का डिमांड में चौक का प्राइस भी इफेक्ट गिरा सकता है, दूसरा कमोडिटी का प्राइस भी इसमें इफेक्ट गिरा सकता है, कंज्यूमर का इनकम भी इफेक्ट गिरा सकता है। क्लियर? जैसे मान लो टी का डिमांड में इफेक्ट आ सकता है प्राइस ऑफ टी का डिमांड में इफेक्ट्स आ सकता है प्राइस ऑफ कॉफ़ी, टी का डिमांड में इफेक्ट आ सकता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। वो कोई भी फैक्टर हो सकता है, इनकम के वजह से भी डिमांड का चेंज हो सकता है, कॉफ़ी का प्राइस के वजह से भी टी का डिमांड चेंज हो सकता है, खुद टी का प्राइस के हिसाब से भी टी का डिमांड का चेंज हो सकता है।
क्लियर? इसका मतलब ये हुआ डिमांड फॉर टी चेंजेस बाय प्राइस ऑफ टी हो सकता है, प्राइस ऑफ कॉफ़ी हो सकता है, एंड कंज्यूमर्स इनकम भी हो सकता है। क्लियर? वो जो डिमांड फॉर टी का जितना चेंज होगा, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर टी, वही चीज़ को बोलता है elasticity of demand. Clear? So finally that elasticity of demand concept again we divided under three categories. Clear? One is price elasticity of demand, second is income elasticity of demand, third one is cross elasticity of demand. Clear? तो elasticity of demand का थ्री कॉन्सेप्ट क्या हो गया? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। नंबर वन क्या? प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? मैं एक एक नाम लिख के एक एक का एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नथिंग बट द व्हाट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कंसर्न गुड्स। मतलब कोई एक चीज का डिमांड का कितना चेंज होगा अगेंस्ट उसका प्राइस का चेंज कितना होगा, मतलब डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एनी गुड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट कंसर्न गुड्स। ओके, सो खुद वही चीज का प्राइस का चेंज के हिसाब से अगर डिमांड का जितना चेंज होगा ना, वही हो जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मान लो टी का डिमांड टी का खुद का प्राइस से हो रहा है, ठीक है? चौक का डिमांड का जो चेंज वो चौक का खुद का प्राइस के वजह से हो रहा है, ठीक है? दिस इज सेड टू बी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का तुम सिंबॉलिक फॉर्म ये भी लिख सकते हो, ईडी इज इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ओके, इसको तुम परसेंटेज भी लगा सकते हो इंटू 100। क्लियर? So this is nothing but price elasticity of demand. Clear? So price elasticity of demand में डिमांड का जो चेंज होगा वो खुद प्राइस के चेंज के हिसाब से होगा। So that we say what? Price elasticity of demand refers to the percentage change in demand due to percentage change in price. Okay? So simple concept हो गया। Next हो जाएगा income elasticity of demand. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में तुमको नंबर 2 इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका सिंबॉलिक फॉर्म तुम ये लिख सकते हो। क्लियर? वाई मीन्स इनकम। ओके, दिस इज नथिंग बट परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मीन्स वाई हियर नथिंग बट इनकम। क्लियर? मतलब कंज्यूमर का इनकम का चेंज हुआ, उसके हिसाब से उसका डिमांड का कितना चेंज हुआ। क्लियर? सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सो दिस इज सेड टू बी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो फाइनली रह गया नंबर थर्ड वन, दिस इज व्हाट? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? So cross elasticity of demand concept always substitutes या complementary goods में हो सकता है। Clear? Cross elasticity of demand, इसमें तुम्हारा टी कॉफ़ी का कॉन्सेप्ट ले सकते हो या पेट्रोल कार का कॉन्सेप्ट भी ले सकते हो। क्लियर? टी कॉफ़ी का लोगे तो सब्सटीट्यूट गुड्स हो जाएगा, या पेट्रोल या कार लोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो जाएगा। क्लियर? इसका फॉर्मूला हो जाएगा EXY। X एक कमोडिटी है, Y अनदर सब्सटीट्यूट गुड्स भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकता है। क्लियर? इसका हो जाएगा प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड फॉर गुड X ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ गुड Y। मतलब इधर डिमांड का चेंज हुआ कोई एक गुड्स का, मतलब X का डिमांड का चेंज हुआ, लेकिन प्राइस किसका चेंज हुआ? Y का प्राइस का चेंज हुआ। Y मतलब हो सकता है सब्सटीट्यूट गुड्स, Y हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर? मतलब कोई एक चीज़ का डिमांड का जो चेंज हुआ वो दूसरा कोई एक चीज़ का प्राइस के वजह से हुआ, वो सब्सटीट्यूट गुड्स भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकते हैं। सो फाइनली क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एनी गुड और पर्टिकुलर गुड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड्स। मतलब कोई एक दूसरा गुड्स का प्राइस का चेंज हुआ तो कोई एक दूसरा गुड्स का डिमांड का चेंज हुआ। वो जो मैंने दूसरा प्राइस दूसरा गुड्स बोल रहा हूँ ना, वो हो सकता है
सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड। जैसे मान लो पेट्रोल का प्राइस चेंज हुआ तो कार का डिमांड का चेंज होगा, तो कॉफ़ी का प्राइस चेंज होगा तो टी का डिमांड का चेंज भी हो सकता है। मतलब कॉफ़ी का प्राइस ने इफेक्ट गिराया टी का डिमांड को, पेट्रोल का प्राइस ने इफेक्ट गिराया कार का डिमांड को। ठीक है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स का कंसेप्ट है ना, ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आता है। क्लियर? सो फाइनली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तुमको मिला 3 टाइप्स। क्लियर? वन इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अनदर इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फाइनली क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? अभी क्वेश्चन ये है, ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉन्सेप्ट है ना, इसको मेजर्स करने के लिए तुम्हारा हाथ में क्या क्या मेथड है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स करने के लिए तुम्हारे हाथ में 2 मेथड है। क्लियर? सो मेथड ऑफ मेजरिंग, मेथड्स क्या क्या है? मेथड्स 2 है। नंबर 1 परसेंटेज मेथड। क्या मेथड? परसेंटेज मेथड। क्लियर? सो परसेंटेज मेथड में क्या होता है? सिंपल चीज, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नथिंग बट डेल्टा क्यू बाई क्यू डेल्टा पी बाई पी। परसेंटेज का मतलब इंटू 100 लगा दो। क्लियर? मतलब कितना परसेंटेज प्राइस का चेंज हुआ, कितना परसेंटेज डिमांड का चेंज हुआ। मतलब 5% प्राइस का चेंज हुआ तो 10% डिमांड का चेंज हुआ। क्लियर? वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब ये इसमें परसेंटेज वाला बात आ गया। क्लियर? सिंपली तुम फॉर्मूला में क्या करो, इंटू 100 लगा दो। क्लियर? सो दिस इज सेड टू बी व्हाट? परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, 100 अगर तुम काट दोगे। क्लियर? तो हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन व्हाट? प्राइस। क्लियर? हो गया। नंबर नेक्स्ट हो सकता है ज्योमेट्रिक मेथड। क्लियर? ज्योमेट्रिक जो मेथड है ना, ज्योमेट्रिक मेथड में एक चीज दिखना है। ज्योमेट्रिक मेथड में अगर तुमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है ना, तो तुमको एक चीज करना है, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। क्लियर? इसका मतलब तुम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, लोअर सेगमेंट मतलब LS, अपर सेगमेंट मतलब US। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मेथड। मतलब ज्योमेट्रिक मेथड में तुमको ED निकालने के लिए तुमको 2 चीज चाहिए, एक डिमांड कर्व का लोअर सेगमेंट, एक डिमांड कर्व का अपर सेगमेंट। क्लियर? जैसे मान लो दिस इज व्हाट डिमांड कर्व, मैं इस हिसाब से बना लेता हूँ, एक पॉइंट डाल दो इधर, तो ये हो गया लोअर सेगमेंट, ये हो गया अपर सेगमेंट। मतलब ये पॉइंट में मतलब E डाल दो तो इतना हो गया अपर सेगमेंट, इधर B डाल दो, इतना हो गया लोअर सेगमेंट। मतलब दिस इज लोअर सेगमेंट, दिस इज अपर सेगमेंट। मतलब लोअर सेगमेंट हो जाएगा इतना, अपर सेगमेंट हो जाएगा इतना। अगर देखा जाए, अगर इस पॉइंट लोगे तो इधर से लोअर इतना होगा, अपर इतना होगा। क्लियर? तो इस तरह से मेजरमेंट करना है अंडर ज्योमेट्रिक मेथड। क्लियर? सो ज्योमेट्रिक मेथड में तुमको ED निकालने के लिए 2 चीज चाहिए, डिमांड कर्व का लोअर सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट। क्लियर? तो इसका अंडर में अगर तुमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है ना, तो इसके लिए तुमको पहले तो जानना पड़ेगा ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉन्सेप्ट है ना, अंडर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें 5 कैटेगरी आता है। क्लियर? सो जैसे 5 कैटेगरी का मतलब ये हो गया, इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक। क्लियर? इसका मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ये जानना जरूरी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंडर में तुमको 5 कैटेगरी मिलेगा, ED ग्रेटर देन 1, ED लेस देन 1, ED इज इक्वल 1, नंबर
ई डी इज इक्वल इन्फिनिटी, नंबर ई डी इज इक्वल 0। ये जो 5 चीज़ मैंने लिखा ना, ये 5 चीज़ है। दिस इज इलास्टिक डिमांड, दिस इज इन इलास्टिक डिमांड, दिस इज यूनिटरी इलास्टिक, दिस इज perfectly elastic, this is perfectly inelastic। clear? मतलब under price elasticity of demand, again we discuss elasticity in 5 way। clear? Finally, number 1, elastic demand it is greater than 1, inelastic demand it is less than 1, unitary elastic it is equal to 1, perfectly elastic it is equal infinity, perfectly inelastic it is equal 0। ये 5 चीज़ तुमको जानना है। अगर 5 चीज़ अच्छे से क्लियर कर लोगे ना, तो ज्योमेट्रिक जो मेथड है ना, उसमें जो फॉर्मूला मैंने डाला था लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, वो चीज़ में भी ये चीज़ तुमको मिल जाएगा। क्लियर? तो पहले ये 5 चीज़ तुमको क्लियर करना है। आफ्टर दैट ज्योमेट्रिक मेथड में भी हम लोग वो 5 चीज़, ये 5 जो कैटेगरी है ना, वो निकालने में थोड़ा इजी होगा, मतलब तुमको समझ में आएगा। क्लियर? तो डेफिनेटली हमको नेक्स्ट क्लास में जाना है ये 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी अंडर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी होता है ना, ये 5 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करता है। क्लियर? वो यही 5 कैटेगरी तुमको ज्योमेट्रिक मेथड में भी मिलेगा। फॉर्मूला वही होगा, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो चीज़ डिस्कशन करना है। एक तो ये वाला चीज़ डिस्कशन करना है, और यही चीज़ ज्योमेट्रिक मेथड में भी डिस्कशन करना है। ओके, थैंक यू।